Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about cementum, the third component of periodontium. The first component is gingiva, then periodontal ligament, then cementum, and at the last alveolar bone. So in this video, we will discuss about cementum. Contents of today's video is definition of cementum, classifications of cementum, composition of cementum, functions of cementum, and unique concepts and clinical correlation of dental cementum in details. Definition. Cementum is a calcified avascular mesenchymal tissue that forms the outer covering of the anatomic root. It provides anchorage mainly to the principal fiber of periodontal ligament. Cementum हमारे पास calcified है, avascular है, mesenchymal in origin है, जो कि रूट को कवर करता है, एनाटॉमिक रूट को कवर करता है. ये encourage प्रोवाइड करता है बिटवीन रूट और periodontal ligament में. Periodontal ligament is in between cementum and bone. Cementum is specialized mineralized tissue that covers the root of the teeth, providing attachment and support to the tooth within the socket of the alveolar bone. ये हमारे पास alveolus है और socket है, टीथ पड़ा हुआ टूथ पड़ा हुआ है. इसमें ये जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, cementum कवर कर रहा है रूट को. अच्छा, टाइप ऑफ cementum. Acellular cementum and cellular cementum. Acellular cementum क्या है? Acellular cementum is a specialized mineralized tissue that covers the cervical portion of the tooth root, extending from cemento-enamel junction to a certain depth. It is characterized by dense mineralized matrix devoid of embedded cementocytes. देखो, जो हमारे पास सर्वाइकल पोर्शन में है ये एसिलुलर सीमेंटम है, जो एपिकल पोर्शन में है ये हमारे पास सिलुलर सीमेंटम है. कोरोनल पोर्शन में जो सीमेंटम है इस ये एसिलुलर है क्योंकि इसमें सीमेंटोसाइट्स नहीं है. आपने ये बात याद रखनी है कि एसिलुलर सीमेंटम में सीमेंटोसाइट्स नहीं होते, ना कि सीमेंटोब्लास्ट और सीमेंटोक्लास्ट. तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एसिलुलर सीमेंटम में सीमेंटोब्लास्ट नहीं है या सीमेंटोक्लास्ट नहीं है या सीमेंटोसाइट्स नहीं है. तो सीमेंटोसाइट्स cementocysts are absent in acellular cementum. Cellular cementum is a specialized mineralized tissue that covers the apical and furcation region of the tooth root. It is characterized by mineralized matrix containing embedded cementocytes housed within lacunae throughout its structure. These cementocytes are connected to each other and to the tooth surface by cellular process within tiny channels called canaliculi. So, lacunae and canaliculi are present in cellular cementum. It is present in apical portion and furcation areas of teeth. तो लोकेशन सीमेंटोसाइट्स का प्रेजेंस आपने याद रखना है. अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन अब इसके कर लेते हैं सेलुलर सीमेंटम और एसिलुलर सीमेंटम का. एसिलुलर सीमेंटम और फर्स्ट फॉर्म सीमेंटम, फर्स्ट जो बनता है सीमेंटम वो एसिलुलर सीमेंटम है. Most of its found before the root reaches the occlusal plane. जब टीथ ग्रोथ कर रहा होता है तो उसी टाइम पर ये भी ग्रो कर रहा होता है. While a cellular cementum is formed after acidular cementum, most of its form after tooth reaches occlusal surface. Cover approximately the cervical third of the half of the root. ये cervical portion में होता है, while the cellular cementum is apical third or apical third. No cells are no cells, but which ones? Cementocytes. Less contain cementocytes. Acellular cementum is more calcified while cellular cementum is less calcified. अब आपको ये किस तरह याद होगा? देखो, एसिलुलर cementum में सेल नहीं है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इसमें कैल्सिफिकेशन ज्यादा है. तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि एसिलुलर cementum है less no cells, but they have more calcification. Sharp fibers make
make up most of the structure. There will be no Sharpie's concept in cellular cementum. Sharpie's fibers क्या है? जो पेरिडोंटल लिगामेंट के जो फाइबर्स है, जो कि सीमेंट में अटैच होते हैं या बोन में अटैच होते हैं, या आप पेरिडोंटल लिगामेंट्स के जो टर्मिनल पोर्शन है, हाँ वो रूट के साथ हो और वो बोन के साथ हो, उसको शार्पीज फाइबर कहते हैं। अच्छा, कंप्लीटली कैल्सिफाइड मे बी कंप्लीटली और पार्शियली कैल्सिफाइड। तो आपने ये डिफरेंशिएशन याद रखने हैं। अच्छा देखो, हमारे इस कोरोनल सीमेंटम है, कोरोनल सीमेंटम को दूसरा नाम क्या कहते हैं? एसिलुलर सीमेंटम कहते हैं। ये रेडिकुलर सीमेंटम है, रेडिकुलर मींस एपिकल सीमेंटम। हमारे पास इंटर रेडिकुलर सीमेंटम है। ये सारे कौन से सीमेंटम होंगे? सेलुलर सीमेंटम होंगे। ये हमारे पास एसिलुलर सीमेंटम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने याद रखनी है। अच्छा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन इज श्रोडर एंड पेज और पेग क्लासिफिकेशन। तो ये कंसेप्ट आपने, ये क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको याद होगा। देखो, इसमें 5 ग्रुप्स है। एसिलुलर एफिब्रिलर सीमेंटम, एसिलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम, एसिलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम, सेलुलर मिक्स्ड स्ट्रेटिफाइड सीमेंटम, सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। देखो, एसिलुलर में एफिब्रिलर सीमेंटम है और एसिलुलर में एक्सट्रिंसिक फाइबर है, सेलुलर में इंट्रिंसिक फाइबर है। तो देखो, सेलुलर, 2 सेलुलर है और 3 एसिलुलर है। जो एसिलुलर है उसमें एफिब्रिलर भी है, एक्सट्रिंसिक भी है और इंट्रिंसिक भी है। तो 3 इस तरह कैटेगराइज करें। 3 एसिलुलर है, 2 हमारे पास सेलुलर है। एसिलुलर में एक्सट्रिंसिक है, एफिब्रिलर है और इंट्रिंसिक है। लेकिन सेलुलर में एफिब्रिलर भी नहीं है, एक्सट्रिंसिक भी नहीं है। सेलुलर में सिर्फ इंट्रिंसिक फाइबर है और मिक्स्ड आपको अलग से याद करना होगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ टफ, बट आप थोड़ा इसको अपने लिए ईज़ी करके इस तरह याद कर सकते हो। तो एसिलुलर एफिब्रिलर सीमेंटम। अब देखो, इसमें एमसीक्यूज़ किस तरह आएगा? ये एसिलुलर है तो ये कहाँ पर होगा? कोरोनल पोर्शन में होगा। एसिलुलर कोरोनल पोर्शन में होगा और सेलुलर किस पोर्शन में होगा? एपिकल पोर्शन में होगा। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सट्रिंसिक फाइबर होते हैं, एक इंट्रिंसिक फाइबर होते हैं। एक्सट्रिंसिक फाइबर वो है जो कि आउटर स्ट्रक्चर से आते हैं, लाइक पीडीएल फाइबर। और इंट्रिंसिक है जो है वो जो विद इन सीमेंटोब्लास्ट बनाते हैं, तो उससे इंट्रिंसिक फाइबर्स होते हैं। अच्छा, फंक्शंस क्या है? Primary function of a cementum is to provide encourage to the root tooth in its alveolus. Alveolus क्या है? Tooth socket है। This is achieved through collagen fiber bundles of the periodontal ligament whose ends are embedded in cementum, and these ends are called Sharpie's fiber. Cementum also play an important role in maintaining occlusal relationship whenever the incision and occlusal surface are abraded due to adhesion. The tooth supra-erupts in order to compensate for the loss and deposition of new cementum occur at the apical root area. देखो, जहाँ पर डिफिशियंसी हो जाए, रूट के डायमेंशंस कम हो जाए, तो कौन कंपेंसेट करेगा? सीमेंटम करेगा। इसके बरकस अगर आपने पेरिडोंटल लिगामेंट में देखा होगा, तो वहां पर हमने कहा था कि पेरिडोंटल लिगामेंट क्या करेगा? सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिटिव प्रोवाइड करेगा, फिजिकल प्रोवाइड करेगा, सेंसरी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो यूनिक फंक्शन सीमेंटम का है, वो किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है, कंपेंसेशन प्रोवाइड करता है जो डिफिशियंसी क्रिएट हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ एट्रीजन एनी अदर वेयर। तो इसको कंपेंसेट करने, एक्लूजल रेडिएशन को कंपेंसेट करने के लिए सीमेंटम अपना सेक्रीफाइस देगा। अच्छा देखो, इसमें अगेन आप देख सकते हैं, एनेमल है, डेंटिन है, पल्प है, गम्स है। हमारे पास काम पेरियोडोंटोलॉजी में किस चीज़ से है? गम्स से है। गम्स है, पेरियोडोंटल लिगामेंट है, पेरियोडोंटल लिगामेंट के पेरियोडोंटल लिगामेंट और रूट के दरमियान क्या है? सीमेंटम है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने याद रखना है कि एलुवेलर सीमेंटम इज प्रेजेंट बिटवीन पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड टूथ सरफेस, नॉट बिटवीन पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड बोन सरफेस। आपने याद रखना है कि पेरियोडोंटल लिगामेंट और रूट के दरमियान सीमेंटम मौजूद है, ना कि सीमेंटम ना कि पेरियोडोंटल लिगामेंट और बोन के दरमियान। अच्छा, इसमें नर्व्स एंड वेसल्स है जो कि पेरियोडोंटल लिगामेंट्स
के थ्रू आता है। ये फोरामेन के है, एपिकल फोरामेन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी कंपोज़िशन है। Cementum is composed of both inorganics, 46%, and organic matter. The organic matter is chiefly composed of 90% type 1 collagen, 5% type 3 collagen, and non-collagenous protein like enamel protein, adhesion molecule like tensines, and fibronectin, glycose aminoglycans like chondroitin sulfate, dermatin sulfate, and heparin sulfate, which constitute the remaining organic matrix. देखो एक इसमें organic भी है, inorganic भी है। ऑर्गेनिक में हमारे पास मोस्ट कॉमनली क्या है? प्रोटीन है, कोलेजन फाइबर्स है। कोलेजन क्या है? प्रोटीन ही इन नेचर है। ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेन्स है, सल्फेट्स है, 3 टाइप ऑफ सल्फेट्स है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, डर्माटिन सल्फेट है एंड हेपारिन सल्फेट है। ये क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट है किस चीज़ के? सीमेंटम के। अच्छा, इनऑर्गेनिक पोर्शंस में क्या है? Hydroxyapatite crystals and calcium phosphate compounds. These are the mineral crystals primarily composed of calcium and phosphate. Hydroxyapatite provide the hardness and mineralization to cementum similar to bone tissue, but their concentration will be less in cementum and more in bone. अच्छा, alongside hydroxyapatite crystal, cementum contain various calcium phosphate compounds such as tricalcium phosphate and calcium carbonate, which contributes to overall mineral content and structural integrity. Organic, inorganic दोनों आपने याद रखने हैं। At the coronal half, the thickness varies from 16 to 60 micrometer, almost the thickness of hair, and at the apical third, it varies from 150 to 200 माइक्रोमीटर। तो इस थिकनेस की बात हो रही है कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है एपिकल और कोनल पोर्शन में इसकी थिकनेस सेम नहीं होगी। ये फिगर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जस्ट पता होना चाहिए कि उसकी जो थिकनेस है ओवरऑल सेम नहीं है। जो उसकी जो कोरोनल हाफ में है उसमें वहाँ पर 16 टू 60 माइक्रोमीटर है, लेकिन जो एपिकल पोर्शन है वहाँ पर मोर थिकर है, 150 टू 200 माइक्रोमीटर है। Formation of cementum is continuous process. The formative rate of which varies throughout life. देखो जिस जिस तरह हमारा टूथ का साइज है वो एक एज तक ग्रो होता है, लेकिन सीमेंटम ऑल ओवर द लाइफ बनता है। तो आपने ये दो यूनिक कंसेप्ट याद रखने हैं। अच्छा, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगेन कंक्लूजन में क्या है? सीमेंटम की डिफिनीशन है, टाइप्स है, सेलुलर सीमेंटम है, एसेलुलर सीमेंटम था। सेलुलर सीमेंटम में हमारे पास वो कोरोनल था। एसिलर सीमेंटम हमारे पास कोरोनल पोर्शन में था। सेलुलर सीमेंटम एपिकल पोर्शन में था। उसके बाद श्रोएडर एंड पेज क्लासिफिकेशन था, जिसमें एसेलुलर एफिब्रिलर सीमेंटम था, एसेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम था, सेलुलर मिक्स्ड रेटिफाइड सीमेंटम था एंड सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम था, इंटरमीडिएट सीमेंटम था। फंक्शंस थे हमारे पास, सपोर्टिव फंक्शन था, कंपेंसेशन थी, और उसके बाद कंपोजिशन थी। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे। सो दैट्स ऑल अबाउट सीमेंटम। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे एल्वेलर बून पर। सो इसके बाद हमारे पास नॉर्मल पीरियोडोंशियम कवर हो जाएगा। उसके बाद हम फिर पैथोलॉजी की तरफ जाएंगे और पीरियोडोंटोलॉजी की जो और कॉन्सेप्ट्स है वो हम फिर लर्न करेंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।